हेलो एवरीवन। आज मैं फिर एक नया वीडियो लेके आई हूँ। एज यू नो, वी आर स्टार्टेड द सेकेंड चैप्टर, दैट इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो हमने क्या कंप्लीट किया है इन प्रीवियस वीडियो? आई वाज कंप्लीटेड द एयर पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इंट्रोडक्शन एंड एयर पोल्यूशन. So in this video we are discussing the climate change. Under this climate change we have several topic: global warming, greenhouse effect and the impacts of climate change, effects of climate change. ठीक है, तो we start with the first topic, that is climate change. Climate is nothing but the average weather condition in a place in average period of time. ठीक है, एवरेज पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या है? व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ इंडिया? व्हाट अबाउट द इंडिया इज वेरी बिग कंट्री, सो वी कांट टॉक अबाउट कंप्लीट होल कंट्रीज वेदर कंडीशन. देयर आर सेवरल वेरिएशन इन द वेदर कंडीशन ऑफ आवर कंट्री, सो वी कैन डिस्ट्रीब्यूट इट इनटू द सिंपल स्मॉल फ्रैक्शंस. फॉर एग्जांपल, वेदर कंडीशंस ऑफ मुंबई रीजन, वेदर कंडीशंस ऑफ नागपुर रीजन, वेदर कंडीशंस ऑफ मराठवाड़ा, ऐसे हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. तो वेदर का मतलब क्या होता है? एनुअल रेनफॉल कितना है, व्हाट इज द टेम्परेचर क्राइटेरिया ऑफ दैट एरिया, देन द ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, ऑल दोज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द वेदर. सो वेदर इज वेदर कंडीशन एंड क्लाइमेट. वेदर कंडीशन एंड क्लाइमेट आर कोरिलेटेड फैक्टर. जो भी वेदर कंडीशन है इट टर्म्स टू द क्लाइमेट. ठीक है, क्लाइमेटिक चेंज हम उसको बोलते हैं, क्लाइमेट हम उसको बोलते हैं. तो क्लाइमेट चेंजेस आर टोटली रिलेटेड विद द natural sources or man-made sources or man-made conditions. So natural conditions are very few in number, so it can't affect to the climate change. Basically climate change occurs to the man-made activity, और उसमें भी सबसे ज्यादा increase in atmospheric gases. When gases of atmosphere एक basic concentration होता है. For example, जो air है, atmosphere है हमारा, उसमें oxygen कितना amount है, then what is the concentration of carbon dioxide, what is the concentration of methane, what is the concentration of nitrogen. Every concentration is fixed. ठीक है, बट इफ दैट कॉन्सेंट्रेशन वेरीज, द अमाउंट ऑफ गैसेस इंक्रीज इन द एनवायरमेंट, इट मीन्स क्लाइमेट चेंजेस आर देयर. एंड बेसिक रीजन, मैनमेड रीजन जो है उसके पीछे, दैट इज फर्स्ट वन इज द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, हम इसको बोलेंगे. सेकेंड वन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, देन डिफॉरेस्टेशन. ऑल दोज आर द related, all those are the man-made sources of climate change. Okay, when we talk about the climate change, several other factors are related there. Second one is the greenhouse effect. ये तीनों factor related है, climate change, greenhouse effect and global warming. Second one is greenhouse effect. Greenhouse effect, as I have a diagram in this whiteboard. This is greenhouse effect. Greenhouse effect, what is the meaning of greenhouse effect? This is Earth's surface. Okay, then after that the upper layer is of atmosphere. Okay, the sun rays enters to the earth's surface. Okay, then second one, some of the sun rays enters to the earth's surface and reflect to the atmosphere. ठीक है, some of the sun rays enters to the earth's surface or atmosphere and it is absorbed by the atmospheric gases. ठीक है, atmospheric gases, and the atmosphere of earth have satisfactory increase in temperature or rising temperature, and that temperature is essential for the growth and development on the earth. But what happened? The gases of, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस. ग्रीन हाउस गैसेस आर द बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड, देन कार्बन मोनोक्साइड, सॉक्स, नॉक्स. मैंने प्रीवियस इसमें बताया सॉक्स नॉक्स क्या है. उसके बाद में आपका मिथेन, एंड नाउ द न्यूएस्ट वन इज द सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हम जिसको बोलते हैं. इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दोज गैसेस आर प्रेजेंट ऑन द एटमॉस्फेयर, देन इट फॉर्म्स अ ग्लास लेयर, मीन्स ग्लास लाइक लेयर फॉर्म करता है ओवर द सर्फेस ऑफ एटमॉस्फेयर. एक गैसियस लेयर फॉर्म हो जाती है इस तरह से. व्हेन द सन रेज एंटर्स टू द दिस type of circumstances, enters to the atmosphere, it enters to the atmosphere, but while the time of reflection, these rays cannot reflected satisfactorily because those gases absorb the heat. Those gases absorb the heat emitted from the sun. That means the rising temperature. Basically यहाँ पे जो कुछ भी है rising temperature तो होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे वो गैसेस जो है वो ट्रैप कर रहे हैं किस चीज को? सन रेज को. दैट इज नथिंग बट द ग्रीन हाउस इफेक्ट.
ठीक है। व्हेन वी आर इन द कार और हम सब सारे ग्लासेस जब बंद कर देते हैं तो वी विल फील दैट ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्लासेस यानी विंडोज जब हम बंद कर देते हैं तो इट विल नियर अबाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। तो दिस इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉजेज बाय द दिस ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट द ग्लोबल वार्मिंग। नाउ व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? Global warming is the criteria related with the concentration of greenhouse gases. If greenhouse gases increases, that means it leads to the global warming. एक प्रिडिक्शन है predicted by the environmentalists, that is up to 2050 the temperature of earth or temperature of atmosphere increases up to 1.5 to 4 degrees Celsius. That is a very big figure we can say, क्योंकि 1 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो पसीने छूट जाते हैं हमारे। और अगर हम सोचे कि 4.5 डिग्री तक अगर बढ़ने वाला है टेम्परेचर 2050 तक, तो इट विल क्रिएट वेरी हजार्डस इफेक्ट और वेरी सीवियर इफेक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ एज वेल एज ऑन द बायोडाइवर्सिटी। तो ग्लोबल वार्मिंग इज रिलेटेड विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीजेस, दैट मीन्स इट लीड्स टू द ग्लोबल वार्मिंग। इन द सिंपल वर्ड, ग्लोबल वार्मिंग इज नथिंग बट द राइज इन टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। सेवरल मैन-मेड कंसेप्ट्स आर रिलेटेड टू द ग्लोबल वार्मिंग, जो मैंने प्रीवियसली भी बताया है। बेसिकली द व्हीकुलर इमिशन, the industrial emission, so many activities are related with the global warming. Now we can discuss the activities related with the climate change. First activity which influence the climate change or which increases the greenhouse gases is the industrialization or industrial emission. Industrial emission में basically carbon monoxide, carbon dioxide, then SOx, NOx and मीथेन, ये सारे होते हैं गैसेस इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में। सेकेंड वन इज अवर vehicular emission. Vehicular emission में कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, आफ्टर दैट द SOx, SOx हम जिसको बोलते हैं, SOx, SO2, SO3, SO4 जिसमें आता है। आफ्टर दैट द फर्टिलाइजर्स यूज इन एग्रीकल्चरल फील्ड, उसमें सबसे ज्यादा होता है अमोनिया, हमको पता है, उसमें सबसे ज्यादा नाइट्रेट एंड अमोनिया उसमें होता है। आफ्टर दैट द बेसिक डोमेस्टिक लैंड फिलिंग, सिवेज डंपिंग, काउ डंग, इन चीजों से अमोनिया सबसे ज्यादा आता है। NH4 जिसको हम बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो एन ग्रीन हाउस गैस। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज द इंडस्ट्रियल हो गया हमारा, उसके बाद में हमारा हो गया व्हीकुलर इमिशन। अब हमारा और एक सोर्स उसमें बचा हुआ है जिससे कि ये सारे गैसेस आते हैं, दैट इज द मैन मेड सोर्स हम उसको बोलते हैं। तो मैन मेड सोर्स में ओपन बर्निंग आप अगर कर रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड इज इमिटेड इन दैट, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो इमिटेड इन दैट एंड SOx, NOx इज ऑल्सो इमिटेड इन दैट सर्कमस्टांसेस। सो दोज आर द factors or those are the substance which is related, or these factors ही हमें उसको, that is proper word, those are the factors related with the increase in greenhouse gases. Okay, और मैं बार बार बोलती हूँ if we have any problem तो we should know the solution of it. तो पहले तो हमको डिस्कस करना है कि what are the impacts of climate change, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज के सबसे पहला इम्पैक्ट है फर्स्ट वन जो मैंने अभी आपको बताया है, दैट इज राइज इन टेम्परेचर। राइज इन टेम्परेचर में अप टू 2050 इट इज प्रेडिक्टेड दैट नियर अबाउट 1.5 to 4.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर विल बी राइज थ्रू आउट द वर्ल्ड। अगर हम इस चीज को सीरियसली ले तो ये बहुत बड़ा नंबर है और बहुत ज्यादा इसके इफेक्ट्स हो सकते हैं राइज इन टेम्परेचर का। सेकेंड वन इज द मेल्टिंग ऑफ आइस, और उसको हम बोलते हैं राइज इन सी लेवल। तो राइज इन सी लेवल में क्या हो रहा है आपका कि अगर 1 सेंटीमीटर भी सी लेवल अगर राइज हो रही है तो इट विल बी हार्मफुल फॉर द एक्वेटिक एनिमल एज वेल एज इट विल बी हार्मफुल फॉर द टेरेस्ट्रियल जो अकोमोडेशन है या जो लोग ओशन शोर में रहते हैं या जिनकी सिटीज ओशन के बाजू में लग के हैं, उन लोगों को बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट होने वाला है। मालदीव्स में एक इंक्रीज इन राइज इन सी लेवल का बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखने मिला है। नियर अबाउट 1 to 2 सेंटीमीटर जो है उसकी मालदीव्स के जो ओशन है उनकी लेवल जो है वो इंक्रीज हो गई है, क्योंकि टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना मेल्टिंग ऑफ आइस भी उसमें उतना ज्यादा ही बढ़ेगा कॉन्सेंट्रेशन। आफ्टर दैट द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मीन्स बहुत सेंसिटिव है बायोडाइवर्सिटी, नॉट ओनली द ह्यूमन बीइंग, सो मेनी एनिमल्स, सो मेनी क्रिएचर्स आर देयर। आपने देखा होगा कोई चींटी अगर चल रही है और बीच में अगर सनलाइट ज्यादा हो जाता है या गर्म ज्यादा है तो वो नहीं चल पाती है। तो ऐसे कई सारे क्रिएचर्स नेचर में है, तो दोज आर वेरी सेंसिटिव टू द हीट।
And if rise in temperature is there, that means biodiversity totally influenced by this rise in temperature. After that, rise in temperature, loss of biodiversity के बाद में हमारा है इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ. इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ वो तो होना ही है. जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, द ब्रीदिंग प्रॉब्लम होते जाएगा. उसके बाद में राइजिंग टेम्परेचर से बहुत सारे जो बैक्टीरियाज है, प्रोटोजोआज है, उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है. तो ऐसी कंडीशन में सेवरल डिसीजेज शुड बी कनेक्टेड विद द ह्यूमन बीइंग, एंड देयर इज अ सीवियर इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन एक्टिविटी. टेम्परेचर बढ़ने से हमारी चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है. आपने देखा होगा समर में जब बहुत ज्यादा सफोकेशन होता है, गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो वी आर सफोकेटेड बाय, और चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है. इट अफेक्ट्स टू आवर ब्रेन, डायरेक्टली इट अफेक्ट्स टू द ब्रेन हिट. तो क्लाइमेट चेंज जो है वो सारे अर्थ के ऊपर इफेक्ट करने वाला है, नॉट ओनली ऑन द ह्यूमन बीइंग, नॉट ओनली ऑन द बायोडाइवर्सिटी. उसके बाद में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के ऊपर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, बिकॉज समटाइम देयर इज अ ड्रॉट, बारिश ही नहीं हो रही है, समटाइम देयर इज अ हेवी रेनफॉल, समटाइम देयर इज अ ड्राइनेस इन सॉइल, समटाइम देयर इज अ ह्यूमिडिटी. ड्रास्टिक क्लाइमेट चेंजेस हो रहा है, उसकी वजह से एग्रीकल्चर जो है वो भी खतरे में है, या उसमें भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होंगे. एज वी नो, एग्रीकल्चर या हमारे देश में हम अन्नदाता बोलते हैं फार्मर्स को, बिकॉज इफ एग्रीकल्चर सर्वाइव्स दैट मीन्स वो अपर लेयर तक पूरा फूड सप्लाई होगा, मीन्स एवरीबडी कैन सर्वाइव. तो ये बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट है जो हमको अभी से समझने हैं, एंड वी कैन contribute to this global warming. We are contributed to this global warming. So from this time we should think positive to reduce the temperature of atmosphere, avoid the CFC use. जैसे aerosols हम use करते हैं, body sprays, avoid the use of CFC, avoid the use of vehicle, use the public transportation. बहुत सारी चीजें हम इसके पहले भी डिस्कस कर सकते हो. डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन बेल्ट, बहुत सारी चीजें. ठीक है. सो इन दिस वीडियो वी आर कंप्लीटेड द climate change, greenhouse effect, global warming, and after global warming, the activities related with the emission of greenhouse gases, and after that effects of climate change. ठीक है. तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक कंप्लीटेड. हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आपसे बात करूंगी. एंड आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट, like it, share it, and please comment me if you have any doubt or if you have any problem. Comment me in comment box. I will give you the proper answer. Thank you.